Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Next month, you may see two major examinations, that is SBI Junior Associate Main, IBPS RRB Officer Main. And on 3rd of October, IBPS RRB Officer Assistant. So if you have done well in Prim, don't deflect your attention to any other examination during these days. From the comments I am observing, some people are asking, sir, how we should manage SBI Junior Associate Main as well as IDBI preparation. It can be very costly for you. Some candidates may lose both the examinations. So there is no need of any special preparation for IDBI Executive or IDBI Postgraduate Diploma course in banking. If you have done well in SBI Junior Associate Prim, IBPS RRB Officer and IBPS RRB Officer Assistant, my advice will be to focus only on these three exams. And with the same preparation, give the exam of IDBI. Don't deflect your energies, and that's why I advise to attempt mock test of these exams only for IDBI preparation. Purpose is to maintain a continuity. Some of you are asking separate mock test for IDBI. That is also under consideration. But my own wisdom says, if you are confident about your qualifying the Prim exam of SBI Junior Associate, IBPS RRB Officer or IBPS RRB Officer Assistant, you should give your 100% to these three examinations. Don't distribute your energies, because this is a common error. When one after another exam comes, the candidate fall into the trap and loses all the examinations. Don't fall under this trap. Yes, if you have applied for IDBI, if you have applied for IDBI Postgraduate Diploma course in banking, and your performance is bad in these three examinations, then only you should give 100% energy to IDBI. But if you have done well in all the three Prims, or two of them, or one of them, your prime focus should remain that examination. This is my advice. Rest is your own choice. If you want to prepare according to your wish, whims and fancies, this is your choice. I am putting videos for all these examinations, but it is my duty to forewarn you and advise you what is good for you. Because I am observing that some of you are getting deviated from your path. Some of you have now, instead of giving full focus to SBI Junior Associate Main exam or IBPS RRB Officer Main exam, they are shifting their energies to some other examinations. It can be a costly thing. So refrain from this. This is my advice. Concentrate on three major examinations. If time permits, then only you should try other examinations. But if your performance is bad in the Prim of all these three, and you are not sure that you will be able to sit in the mains, then you can put your more energies on IDBI examination. This is my advice. Rest is your choice. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब सितंबर के महीने में आपका SBI जूनियर एसोसिएट मेन है. सितंबर में ही आपका IBPS RRB ऑफिसर मेन है. सितंबर में ही आपका IBPS RRB, अक्टूबर के 3 अक्टूबर को IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मेन है. जिन लोगों का इन तीनों एग्जाम का प्री में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उनको इन 3 एग्जाम के तैयारी से फोकस नहीं हटाना चाहिए. ये मेरी एडवाइस है. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई लोग पूछ रहे हैं कि सर SBI जूनियर एसोसिएट मेन और IDBI की तैयारी साथ साथ कैसे करें. मीन्स इट इज ए क्लियर कंफ्यूजन इन दीज पीपल माइंड. वाई देयर शुड बी कंफ्यूजन कि मुझे SBI जूनियर एसोसिएट और IDBI एग्जीक्यूटिव के बीच किसी को चुनना है. इस तरह का जो कन्फ्लिक्ट है,
आपको दोनों एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम में डाल सकता है। यदि आपको लगता है कि आप SBI जूनियर एसोसिएट मेन में बैठेंगे, या आपको लगता है कि आप IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मेन में बैठेंगे, या आप IBPS RRB ऑफिसर के मेन में बैठेंगे, तो आपको पूरी एनर्जी उसमें लगानी चाहिए और IDBI का एग्ज़ाम दे दें इसी तैयारी के साथ। उसके लिए अलग से फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए जो IDBI का शेड्यूल भी मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा अपना मानना ये है कि जो आपके एग्जिस्टिंग एग्ज़ाम के मॉक्स हैं उसी को फोकस करके आपको तैयारी करनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि उनको IDBI स्पेसिफिक मॉक्स मिलने चाहिए, अलग होने चाहिए। इसके लिए भी मैंने सर्विस प्रोवाइडर से बात की है। हो सकता है ये तरह मॉक टेस्ट भी आपको दे दिए जाएं, पर वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे मेरे नज़रिए से नहीं है। क्योंकि यदि आप मेन एग्ज़ाम से अपने को ऑफ ट्रैक कर लेते हैं और इन साइड एग्ज़ाम्स में पड़ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ना तो यही एग्ज़ाम पास होता है क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं, और ना ही वो एग्ज़ाम पास होता है जहां आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके मेरिट में आ सकते थे। चॉइस तो करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम आएंगे, सब एग्ज़ाम आप एक साथ तैयार नहीं कर सकते हैं। चॉइस आपको करनी पड़ेगी। यदि आपका प्रीम अच्छा गया है, मेरा मानना अभी भी यह है कि आपको मेन की तैयारी करनी चाहिए। डेली मैं इसके लिए वीडियोस डाल रहा हूँ, उसमें बताए रास्ते पे चलिए और वहीं फोकस रखिए। और जो भी ये इन बिटवीन एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इनको इसी तैयारी से दे दीजिए। इसके लिए अलग से टाइम डिवोट करने लग जाएंगे, इसके लिए एडिशनल मटेरियल पढ़ने लग जाएंगे, इसके लिए एडिशनल मॉक्स करने लग जाएंगे। ये आपका टाइम ही लेगा और आपको अपने रास्ते से भटकाएगा, और वो आपके लिए महंगा भी साबित हो सकता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि ये चैनल है राइट एडवाइस एट राइट टाइम। क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान है, ये एग्ज़ाम भी तैयार कर लो, वो एग्ज़ाम भी तैयार कर लो, वो एग्ज़ाम भी तैयार कर लो, पर ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। हाँ, किसी कैंडिडेट का SBI जूनियर एसोसिएट अच्छा नहीं हुआ, किसी कैंडिडेट का IBPS RRB ऑफिसर अच्छा नहीं हुआ, किसी का IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट अच्छा नहीं हुआ, और उसको लग रहा है ये तीनों चांस उसके हाथ से निकल चुके हैं, तो उसको IDBI में जी जोर लगा के तैयारी करनी चाहिए। पर जिनका वो एग्ज़ाम अच्छा गया है, अगर वो भी अपनी एनर्जीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, 15 दिन यहाँ देना चाह रहे हैं अपने 1 महीने के प्रेशियस टाइम से, तो ये बहुत महंगा साबित हो सकता है। वीडियोस हम हर एग्ज़ाम पे डाल रहे हैं क्योंकि आपकी डिमांड आती है, हम डाल रहे हैं, पर उसमें मेरे को ये स्पष्ट करना भी आपको ज़रूरी है कि आपको सारे एग्ज़ाम में फोकस करना ज़रूरी नहीं होता। अपना निश्चित करिए आपको किस एग्ज़ाम पे फोकस करना, और वो वीडियो को फॉलो करके थिक एंड थिन तैयारी करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।